Hello guys, today is the fifth lecture of chemical kinetics of class 12th. In the previous lecture, we have studied about the initial rate method to determine the rate law or order of reaction. So in that lecture, we have given some initial concentration of reactants and then initial rate value. Then according to concentration and rate, we have determined order of reaction with respect to species I, and then we find the total order of reaction and rate constant and rate law. So that method is only used for the to find the rate law order of reaction. But if we have given a specific zero order reaction or first order reaction or second order reaction, then how to determine the concentration for that order of reaction, and how the graph of concentration with respect to time is changes. So in today's lecture, we are going to study about the zero order reaction. So in zero order reaction, in each book we have found reaction of type is A gives product. In every book or any notes, you can see this is the only reaction you can find. 99% of cases we find A gives product, this type of reaction, and we will do mathematical operation for zero order reaction for this type of reaction only. A gives product. But there is one person's cases in which reaction is different. It is not A gives product. It may be different. Uh, so we will talk about that special type of reaction for zero order reaction in later part of this lecture. But that special part will not come in the board exam. It is only valid. It is only useful for the competitive exam. So we will cover that for that also. So but first we can talk. We talk about the Aegis product. This type of reaction. So simple. If this is your reaction and rate is given, rate is equal to R is equal to K A की power 0. Concentration A की power 0, which is means rate is equal to K. Okay. So since zero order reaction, the order of reaction with respect to reactant A should be 0. And there is only one reactant. So total order of reaction is also 0. So 0 means A की power 0 means 1, well 1. So rate is equal to the rate constant, which is K is rate constant. Okay. So if we make a graph of rate with respect to concentration of A, we can see if we make a graph rate, and here is concentration of A. So rate is equal to K, and K is rate constant. It is a constant value. So rate graph will be like this, constant. It is not a function of concentration. So concentration change करने पर rate change नहीं होगा, constant value है. और अगर हम टाइम के हिसाब से बनाए इसको ग्राफ, तो टाइम के साथ में क्या होगा? या टाइम के साथ में चेंज होगा? तो अगर हम बनाए रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जस्ट ले लेते हैं टी, तो आप इस इक्वेशन में देखिए रेट इज इक्वल टू के. के इज रेट कांस्टेंट. अब के किस पे डिपेंड करता है ये तो मैंने अभी तक बताया नहीं है, बट के डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जो कि आपका लेटर पार्ट में आएगा लेक्चर्स में. तो के जो होता है वो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो टाइम पे इसका कोई टाइम पे वेरिएशंस पे नहीं है. सो रेट की इक्वेशन में टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, तो टाइम के हिसाब से रेट भी कांस्टेंट हो जाएगा. टाइम के साथ से रेट भी नहीं चेंज होगा. तो रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए पे भी चेंज नहीं होगा, और रेट जो है टाइम के साथ भी चेंज नहीं होगा फॉर zero order reaction. Now for this type of reaction
वी विल टॉक अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर लेता हूँ मैं। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? ऐसे रिएक्शन तुम्हारी वही है, ए गिव्स प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि 99% केस में यही रहेंगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए गिव्स प्रोडक्ट 99% केसेस में यही रहेगी। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या है, देखिए आपका रेट कांस्टेंट, अब जैसे ऊपर वाले ग्राफ में देख लेते हैं, इसमें ग्राफ में चलते हैं। इस ग्राफ में आप ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में आपका रेट क्या है? रेट कांस्टेंट है, ठीक है। रेट तो आपका चेंज नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के हिसाब से। तो अब ये बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज होगा कि नहीं होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट ए, अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही कोई एक रिएक्शन लिख देता हूँ, एक्स गिव्स वाई, ठीक है। तो जो ये एक्स है, ये एक्स वाई में चेंज हो रहा है ना, तो एक्स वाई में चेंज हो रहा है, तो एक्स तो आपका रिएक्टेंट है, ये तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट। तो एक्स वाई में चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्स कंज्यूम हो रहा है, ये हो रहा है आपका कंज्यूम, और ये आपका हो रहा है अपीयर। अब ये कंज्यूम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स क्या होगी? डिक्रीज होगी ना टाइम के साथ। तो एक्स जो है वो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वह टाइम के साथ ही डिक्रीज होगा। अब कैसे डिक्रीज होगा ये तो नहीं पता, स्क्वायर होगा, लीनियर होगा, बट एज टाइम इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिक्रीजेस। और y की लिए बात कर सकते, क्या करेंगे? अगर टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ y इंक्रीजेस। तो रेट आपका कांस्टेंट है, बट कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका रेट अगर k के बराबर है और एज टाइम हमारा इंक्रीज करता गया, तो रेट क्या है? रेट वही कांस्टेंट है, टाइम के साथ रेट डिक्रीज नहीं करेगा। अगर ये रेट के एक्स होता तो आपका टाइम के साथ एक्स डिक्रीज होता, तो रेट भी डिक्रीज होता। तो रेट आपका कांस्टेंट नहीं रहता, तो जैसे जैसे एक्स कंज्यूम होता जाता, तो उस रिएक्शन का जो रेट है, उस रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होता जाता। बट हियर रेट क्या है? इक्वल टू के, विच इज कांस्टेंट। जो कांस्टेंट आपका टाइम के साथ एक्स डिक्रीज होता जा रहा है, एज टाइम इंक्रीजेस रेट इज कांस्टेंट बट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज होता जा रहा है बट रेट कांस्टेंट है। तो जो डिक्रीज होने का रेट है एक्स का, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका 5 मिनट में एक्स एक्स नॉट हो जाता है या एक्स वन हो जाता है, तो 10 मिनट में एक्स एक्स टू हो जाएगा, जो कि एक्स टू जो होगा वो और एक्स वन से छोटा होगा। एक्स वन विल बी ग्रेटर देन एक्स एक्स टू। बट अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें, अगर रेट आपका आर वन है और यहाँ पर रेट आपका आर टू है, तो आर वन शुड बी इक्वल टू आर टू एट बोथ टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पे आर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब रेट आपका कांस्टेंट है बट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आपकी डिक्रीज होगी। ये था मेन मकसद बताने का इसका। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ में अगर ए गिव्स प्रोडक्ट है, तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ए कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ उसको निकालते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालेंगे एट एनी टाइम टी पे, ठीक है। वो निकालने, वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपका देता है। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए भी करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करेंगे, और nth ऑर्डर के लिए भी करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ सिर्फ नथिंग बट ये सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं उनको शो करता है। तो हम जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर यही रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आर क्या होगा? रेट क्या होगा? बाई रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के e की पावर 0 विच इज इक्वल टू के। और हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम लोग रेट को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू -1/1
dA by dt, instantaneous rate of reaction, और इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 1/x जो भी स्टैकोमेट्री है, डी ऑफ प्रोडक्ट बाय dt। ठीक है, x मीन्स स्टैकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो ये है इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं ना, रेट के बराबर, तो माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के, विच इक्वल टू डी ए is equal to minus k dt. Now we have to integrate it. तो इंटीग्रेट करेंगे dA is equal to minus k इंटीग्रेशन ऑफ dt। k बाहर ले लिया क्योंकि k इज कांस्टेंट। अब क्या है, हमें यहाँ पर लिमिट चाहिए, तो लिमिट क्या होगी, एट t is equal to 0 concentration of A is A naught, initial concentration at t is equal to t, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने मान लिया ए है कुछ, उस समय ए बची होगी भाई टी पे, टी जीरो पे कंसंट्रेशन ए नॉट थी, फिर उसके बाद ए नॉट से कुछ कंज्यूम हो गई होगी, कुछ आपका प्रोडक्ट बन गया होगा, तो टाइम टी के बाद ए नॉट से तो कम होगी कंसंट्रेशन जो ए की बची होगी, तो ए की बची हुई कंसंट्रेशन क्या है, वो ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब जीरो टाइम था तो कंसंट्रेशन ए नॉट थी, जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन ए थी, तो ये आपकी होगी लिमिट। इस लिमिट को डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, तो ए, और यहाँ पर लग जाएगा ए नॉट से ए, और इधर आ जाएगा माइनस के टी और जीरो से टी, तो ये हो गया ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो, तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये आ गया कंसंट्रेशन ए की एट टाइम टी पे टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, वैलिड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन, ओनली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए ही ये वैलिड है। अगर ये रिएक्शन नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा, ये स्पेशल केस में पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, अब जो सब कुछ पढ़ लेते, ए इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ए नॉट क्या है, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और क्या बोल सकते हैं इसको हम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम, रिएक्शन टाइम। ये आपके हमने बता दिया, एक एक चीज बता दी, कौन सा चीज क्या है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं, किसके लिए, कंसंट्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट पे। तो ग्राफ बनाते हैं हम, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ये आपका इधर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए विच इज in mole per liter, here टाइम इन मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब इसको कंपेयर करिए, कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर से हम कंपेयर करें तो c क्या हो गया, c आपका हो गया ए नॉट, m क्या हो गया माइनस के, तो कैसी बनेगी, ये से बनेगी, विच इज ये क्या होगा, ए नॉट
ये 0 था और ये कोई भी टाइम होगा, आई डोंट नो, इस टाइम पे ये 0 हो रहा है। अब ये क्या होता है, ये एंगल थीटा क्या शो करता है, ये एंगल थीटा शो करता है स्लोप को। स्लोप क्या होगी इसकी, स्लोप होगी टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, माइनस के। माइनस के। तो अगर आपको अगर आपको ऐसा ग्राफ दे दिया गया कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो टाइम के साथ एक लीनियर पैटर्न शो कर रही है, लीनियरली डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी भी चाहिए। थ्योरी बताई थी आपको, कंसंट्रेशन भाई ए कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो ए कंज्यूम हो रहा है तो खत्म, डिक्रीज होना चाहिए। आपको वो दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्राफ से। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है लीनियरली डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो आपको आंख बंद करके बस लगा देना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर पूछ दिया गया कि इस रिएक्शन का, इस टाइप ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, और आपको दे दिया गया कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अगर आपको ये एंगल दे दिया गया तो उसका मतलब आपको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल हो गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस के। तो के की वैल्यू हो गई -10.50 डिग्री। सीधे सीधे आपको बस रेट कांस्टेंट निकाल देना है, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये तो आपको चीज़ याद होनी चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इक्वेशन बनती है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी फॉर रिएक्शन इज ए टू ए गिव्स प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन के लिए आपका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियरली डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो उस लाइन का स्लोप होगी वो स्लोप होगी माइनस के बराबर। सिंपल, सिंपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, हाफ लाइफ ऑफ टाइम, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो दो तीन चीजें इसमें आती हैं, ये हर ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ाया जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इस नाम से आपको क्या प्रतीत होता है कि ये क्या बता रहा होगा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। आधी रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलिए आपकी रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनिशियल एट टी इज इक्वल टू 0 पे आपका ए नॉट था। तो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ पे, जो कि हाफ लाइफ होती है, ये A0/2 कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो A0/2 बचेगा। यही हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब आधी खत्म हो गई, मतलब आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए। तो इसको हम शो रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, T1/2। और इसकी डेफिनेशन होती है, अगर मैं यहाँ डेफिनेशन यहीं पर लिख दूं, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। टाइम एट विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। वही चीज मैंने यहाँ बताई थी इससे, ए ए से बी ए से बी प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट रिएक्शन हो रही है, उसके लिए अगर टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन ए नॉट है, टी हाफ पे कंसंट्रेशन A/2 हो जाएगी। अब टी हाफ के लिए निकाल लेते हैं कि टी हाफ कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमारे लिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या थी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ पे ए बचेगा A0/2, ये है A0 माइनस के टी हाफ। तो A0/2 माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ये बचा -A0/2 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से आया
टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। याद कर लीजिए कि टी हाफ ये बता रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट एट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सिर्फ इतना बता रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका टी हाफ। ऐसे ही टी हाफ के अलावा आपका आता है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। इसको शो करते हैं टी एल एफ से, लाइफ टाइम। तो इसका क्या होती है डेफिनेशन? टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 100%। मीन्स आपकी टोटल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास ई टू गिव्स प्रोडक्ट इस टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे आपका ये ए नॉट होगा। एट टी इज इक्वल टू टी हाफ पे ये ए नॉट बाय 2 होगा। एट टी इज इक्वल टू टी एल एफ पे ये 0 होगा। 100% कंप्लीट हो गई। पूरा पूरा ए कन्वर्ट टू प्रोडक्ट हो गया। और ये हमें ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ शो भी कर रहा है। ये ग्राफ शो कर रहा है, देखिए इधर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब ये जो टी है, ये टी है आपका टी एल एफ, लाइफ टाइम ऑफ टी एल एफ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है, सॉरी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0 भी हो सकती है। मतलब आपका पूरा रिएक्टेंट भी कंज्यूम हो सकता है। ठीक है, तो अब टी एल एफ को भी निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन तो वही है भाई। इस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या लगेगी? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो टी इज इक्वल टू टी हाफ पे ए इज 0, ये है ए नॉट करा हुआ, ये है माइनस के, ये हो गया टी एल एफ। यहाँ से टी एल एफ निकल गया। टी एल एफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। सिंपल हो गया। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k और टी एल एफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। ठीक है, अब इन दोनों टी हाफ और टी एल एफ को एक बार ध्यान से देखिए, क्या शो कर रहा है ये टी एल एफ और टी हाफ को देखिए। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 1/2 ए नॉट बाई के, और ए नॉट बाई के क्या है? टी एल एफ। इसको मैं सकता हूँ टी एल एफ बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसको अगर मुझे टी हाफ के टर्म में चेंज करना हो, तो मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें ए नॉट बाई के को, तो मैं 2 टाइम्स टी हाफ लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? अब एक पॉइंट देखिए, लेट करते हैं जो ए था इनिशियली वो 100 था, 100 मोल पर लीटर था। ठीक है, तो 100 से 50 जाने में और 50 से 0 जाने में क्या टाइम लग रहा है पता है आपको? हाँ कहेंगे पता है। 100 से 50 जाने में हमें टी हाफ का टाइम लगता है, और इसी 100 से 0 जाने में हमें टी एल एफ का टाइम लगता है। इस टी एल एफ को हम क्या बोल सकते हैं? टी एल एफ को हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स टी हाफ, हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 100 से 50 जाने में हमें टी हाफ टाइम लग रहा था, और इस 100 से 0 जाने में 2 टी हाफ टाइम लग रहा है। तो 50 से 0 जाने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और टी एफ क्या था? ए नॉट बाई 2k। ये भी है ए नॉट बाई 2k। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा? ए नॉट बाई के, जो कि टी एल एफ की वैल्यू है, ए नॉट बाई के। समझ रहे हैं ये चीज? मतलब
ये एक तरीके से यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहा है। अगर आपको 100 से 50 जाने में जो टाइम लग रहा है वही 50 से 0 जाने में टाइम लगेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ये इस खूबी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, कि ये यूनिटरी मेथड को फॉलो करता है। अगर आपको एक टाइम के लिए टाइम दिया हुआ है तो आप नेक्स्ट के लिए निकाल सकते हैं, और वो बहुत इजी है। ठीक है, एक सवाल देते हैं आपको ऐसे ही। सवाल नहीं है, मतलब ऐसे सिंपल बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, कंसीडर करिए आपके पास 100 था और हमें चाहिए 80%। 80% कंप्लीट 100 से 10% कंप्लीट होती है, तो 10% कंप्लीट होने में टी टाइम लगता है। तो 10% कंप्लीट का मतलब क्या है, मतलब 90 बचा होगा। भाई 10% कंप्लीट हो गई, 10% कंप्लीट का मतलब क्या है, 10% आपका प्रोडक्ट बन गया। 10% प्रोडक्ट बन गया इसका मतलब क्या है, 90 आपका ए बचा, 90 बचा। अब बताइए 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 80% कंप्लीट होने में मतलब यहाँ पर 20 बचा। 80% कंप्लीशन, कंप्लीशन बताओ आप, बताइए कितना होना चाहिए यहाँ पर। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी से भी, बट मैं चाहता हूँ कि आप यूनिटरी मेथड से निकालें, ये की फास्ट होगा। आप करिए, पॉज करिए, पॉज करके करिए, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। हो गया, हो गया, फिर मैं बताता हूँ। देखिए 100 से 90, 10% कंप्लीट हुई। 10% कंप्लीट होने में अगर टी टाइम लगता है तो 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फिर टी टाइम लगेगा, मतलब 80 जाने के लिए। 70 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर टी टाइम लगेगा। हर 10% के लिए निकाल लीजिए। ठीक है, अब 70 हो गया, अब 60, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। 50, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, टी। 40, टाइम कितना लगेगा, टी। 30, टाइम कितना लगेगा, टी। 20, टाइम कितना लगेगा, टी। कितने टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 100 से 20 जाने में आपको लगेगा 80 टाइम्स। सिंपल था। 100 से 80, 100 से 20, 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट, 80 टाइम्स। डायरेक्ट लगा देना था, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। डायरेक्ट आपको निकालना है कि अगर 100 10% कंप्लीट होने में टी टाइम लगता है तो 80% कंप्लीट होने में 80 टाइम्स लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। अगर 100 से 90 जाने में टी टाइम लगता है तो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 60% कंप्लीट। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, 60 टाइम लगेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो आप यहीं से देख लीजिए। ये 60% कंप्लीट मतलब कितना हो गया, 40। 40 मतलब 1 2 3 4 5 6, हो गया 40। 60 टाइम डायरेक्ट निकालिए। यूनिटरी मेथड लगेगा, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाइए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। और ये सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए लगता है यूनिटरी मेथड, हर ऑर्डर के लिए नहीं लगता है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड एग्जाम में यूनिटरी मेथड लगा के मत आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। बोर्ड मेथड में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपको इससे ही निकाल के सॉल्व करना है, इस इक्वेशन का ही यूज करना पड़ेगा बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड में ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि बोर्ड में यूनिटरी मेथड लगा के आ गए। एक हम लोग रूल बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसे ही लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। रूल हो गया, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स unitary method can be used, unitary method can be used। इसे आपको लगाना कंपटीशन के लिए, टाइम बचाने के लिए, ये नहीं कि बोर्ड में लगा के आ गए। हम्म, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन करा देता हूँ।
क्वेश्चन क्या है? फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, इफ टाइम टेक्स फॉर 50% completion, 50% completion is 2 minutes, is 2 minutes. Find the required for find the time required for the time, यहाँ पर होना चाहिए time required for 75% completion of reaction. Completion of reaction. क्यों आंसर कितना आएगा था? 3 मिनट। जल्दी कैसे आ गया? यूनिटरी मेथड से। सॉल्यूशन पहले तो हम लोग बोर्ड के मेथड से करेंगे, सिंपल पहले वो नहीं लगाएंगे। नो यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड भी लगा के देखेंगे क्या आता है। देखिए और ए टू ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप की रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन है तो हम लोग ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सिंस हम लोग ये यूज कर सकते हैं तो क्या होगा, हमें दिया हुआ है कि 50% कंप्लीट होने के लिए 2 मिनट लगते हैं, तो इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पर ये रखें, हम टी एफ का यूज कर लेते हैं। तो टी हाफ होता है ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। टी हाफ दिया हुआ है आपको, टी हाफ दिया है 2 मिनट। तो अगर हम के की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, 2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, यहाँ से अगर हम के निकालें, के इज इक्वल टू ए नॉट बाई 4 हो गया। 75% कंप्लीशन होने में कितना लगेगा? तो अगर इनिशियली ए नॉट था और 75% कंप्लीशन होने का मतलब हो गया ये था आपका एट टी इज इक्वल टू 0 पे, तो एट टी इज इक्वल टू टी पे 75% कंप्लीट हुआ है, ये टी निकालना है हमें। 75% कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, ए नॉट माइनस 0.75 ए नॉट, मतलब इतना आपका कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? बचा हमारा 0.25 ए नॉट। तो अब ये वैल्यू ए में रख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 0.25 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो ये आ गया 0.75 ए नॉट इज इक्वल टू के टी, और इसको लिख दूंगा 0.75 ए नॉट बाई टी इज इक्वल टू के। तो ये सेकेंड इक्वेशन से के, ये थर्ड इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर दो सेकेंड और थर्ड को, तो आएगा 0.75 ए नॉट बाई टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई 4। ए नॉट से ए नॉट कट गया, टी निकालना है हमें, तो टी इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 मिनट। तो टी आ गया 3 मिनट। ये तो आपका गेस से, अगर हमें निकालना था यूनिटरी मेथड से, तो कैसे निकालते हैं? यूनिटरी मेथड से कितना सिंपल था, हमारा ए नॉट है, अब उसने दिया ए नॉट बाई 2 होने में टाइम लगता है 2 मिनट। अब ए नॉट से कितना हो जाए, 75% कम्प्लीटेड, 75% कम्प्लीशन मतलब ए नॉट बाई 4, ये कितना हो गया, ए नॉट से ए नॉट बाई 4 मतलब 3 ए नॉट बाई 4, आपको चला गया 3 ए नॉट बाई 4 है, 75% कम्प्लीट हो गया भाई। ये आया
50% कंप्लीट। ये है आपका 50% कंप्लीशन, और यहाँ से 25% कंप्लीशन और कर दे तो ये हो जाएगा 75% कंप्लीशन। 75% कंप्लीशन। अब वही लग रहा है यूनिटरी मेथड। तो अब ए नॉट से ए नॉट बाई टू 50% कंप्लीशन में 2 मिनट लगता है। तो 50 से 75 मतलब क्या, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना हुआ, 25% कंप्लीशन है। तो 25 कंप्लीशन में कितना लगेगा, 1 मिनट। टोटल कितना हो गया 75% कंप्लीशन होने में 3 मिनट। तो टोटल टाइम हो गया इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 मिनट। यही टाइम होना चाहिए था, T.75 75% कंप्लीशन के लिए। ये हमें चाहिए था, ये हमें आ गया। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी zero order. It takes 2 minutes for 50% completion. 50% completion. Find the time required for 33.33% completion। अब इसको कैसे करोगे, पहले तुम लोग अपना मेथड लगाते हैं। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इक्वेशन वैलिड है। 50% की बात कर रहा है तो हम लोग के निकाल लेते हैं, के पुरानी इक्वेशन से आ जाएगा A0/4, पिछली बार किया था उसी से आ जाएगा, तो वही डायरेक्ट यूज कर लिया मैंने। ठीक है, अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीशन के लिए पूछा है, इसमें मतलब बचेगा कितना, 66.67% बचेगा। तो ए बचा कितना, ए आपके पास बचा है 0.6667 ए नॉट। ये हो गया ए नॉट माइनस के टी, इसको माइनस करेंगे तो 0.3333 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.3333 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू के। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने के बाद आफ्टर कंपेयरिंग हमें बचेगा 0.3333 टी डिवाइड इज इक्वल टू, यहाँ पर ए नॉट भी होगा, ए नॉट इज इक्वल टू A0/4, ए नॉट से ए नॉट कट गया तो बचा टी इज इक्वल टू 0.3333 इंटू 4, तो टी आया आपका 1.3332 मिनट। अच्छा, ये तो हम लोग इससे कर लिया, क्या इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग उससे कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से? हाँ कर सकते हैं, इससे करेंगे, यही है ना क्वेश्चन, ये यूनिटरी मेथड से कैसे होगा। देखिए कैसे होता है। देखिए आपके पास ए नॉट है, ए नॉट से A0/2 जाने के लिए 2 मिनट लगे, तो ये है 50% कंप्लीशन। 50% कंप्लीशन, ठीक है। और हमसे पूछा गया है 33% कंप्लीशन के लिए, ठीक है। तो हमसे तो 33% कंप्लीशन के लिए पूछा गया है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 10% कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा। तो यूनिटरी मेथड है, 50% कंप्लीशन होने में अगर हमें टाइम लगता है 2 मिनट, तो 10% कंप्लीशन होने में टाइम कितना लगेगा, 2/50 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये से कट गया 2/5 दैट इज 0.4 मिनट। तो 30% कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा, पहले करवाया था, 3 × 0.4 लगेगा, तो 0.7
ए नॉट, ये 30% कंप्लीशन हो गया। अब इस 0.7 को हमें करना है 3333, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक और 40% कंप्लीशन ले लेते हैं, तो 0.6 ए नॉट, इसको हम 3 भाग में तोड़ देते हैं, दिस और दिस। तो इस पूरे में लगता टाइम आपको 0.4 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता 0.4 मिनट। तो इसको हमने 3 इक्वल भाग में डिवाइड करा है, तो ये तो 3333 आएगा, तो इसमें कितना लगेगा 0.4/3, इसमें भी 0.4/3, इसमें भी 0.4/3। तो ये था 30% और ये हो गया 33.33%। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया T = 3 × 0.4 प्लस 0.4/3, तो ये हो गया 9 × 0.4 प्लस 0.4/3। 0.4 को कॉमन लेते हैं, 9 + 1/3 = 4/3 = 1.3333 मिनट्स। वही आंसर था, वही आंसर यहाँ पर है। हो गया। यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन है यूनिटी मेथड से ना कर सकें आप, तो यूनिटी मेथड से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें हम लोग को एक और प्रकार का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन देखना है। फिर कितने प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वो ग्राफ देखने हैं। फिर इसके बाद हमें एग्जांपल्स देखने हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसी कौन सी रिएक्शन, अच्छा ऐसी कोई रिएक्शन है भी कि नहीं है जीरो ऑर्डर के लिए, एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड रिएक्शन है कि नहीं है, कि रेट आपका कांस्टेंट है बट कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज हो, अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की बट रेट कांस्टेंट है, ऐसा कोई है कि नहीं है, वो एग्जांपल्स देखने हैं। फिर हमने आपको बताया था स्पेशल केसेस भी देखने हैं जीरो ऑर्डर के लिए, जब ए गिव्स प्रोडक्ट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी वैलिड ना हो, मतलब अलग टाइप की रिएक्शन हो। तो इतनी चीज़ें और पढ़नी है, और मैं 10 मिनट में तो ये सब चीज़ें नहीं करा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो और लेना है, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, वहां से ग्राफ से लेकर कंटिन्यू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ओके, बाय।